आपको जैसे भी शेयर करना हो कर देना। एंड आज हम अभी देखेंगे क्रिएटिव एआई एंड द एनवायरनमेंट। So introduce how AI is being used for environmental sustainability. Example, reducing waste, smart agriculture. तो ये देखेंगे कि कैसे कैसे एआई हमारा एनवायरनमेंट में हेल्प कर रहा है, लाइक फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, एंड एनवायरनमेंट को सही रखने में कैसे हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इसकी वीडियो देखते हैं। Agriculture has always been a field which requires a lot of hard work. Agriculture has always been a field which requires a lot of hard work and human supervision to complete even the smallest of tasks. It also requires a skilled eye, such as being able to recognize when crops are ready to be picked, or recognizing diseases in crops early, or even detecting insects, which can cause harm to certain crops. So it's safe to say that a lot of work is needed to increase productivity in this field. But this is where AI comes in. In 2050, the world's population will increase from 7.3 billion to 9.7 billion people on the planet, meaning food production must increase by a whopping 70%. The only way this can be achieved is through the help of AI. Let's take a look at how AI is being incorporated in agriculture to tackle these problems. Starting with in-field monitoring with computer vision. AI इन्होंने अभी क्या बताया कि हमारे लिए एग्रीकल्चर कितना इम्पोर्टेंट है, एंड जैसे जैसे अभी टाइम जा रहा है तो हमारी दुनिया की पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे तो उनका फूड की वो नीड भी बढ़ेगी कि जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा खाना चाहिए। एंड उसके अंदर अब इतनी सारी बढ़ती नीड्स को मैनेज करने में अब हमारी एआई हेल्प कर सकता है। सो एआई कैसे कैसे हेल्प करेगा, उसका ये फर्स्ट पॉइंट है। tackle these problems, starting with in-field monitoring with computer vision. इन फील्ड मॉनिटरिंग विद कंप्यूटर विजन। तो कंप्यूटर विजन हमने कल परसों भी पढ़ा था कि इमेज रिकग्निशन का एक पार्ट होता है, एंड इमेज रिकग्निशन के अंदर कंप्यूटर विजन वो होता है कि जो उसे कैमरे से देख रहा है वो कंप्यूटर विजन है, एंड उसके बाद उसे प्रोसेस वगैरह करना वो उसमें आता है इमेज रीडिंग में। ठीक है, AI can be used to monitor the health and progress of crops in field. Pests are a major issue in agriculture, being one of the main sources of reduction in crops. Pests cause two problems in agriculture. The first is by causing damaging crops and food production. The second is indirect damage. Some insects are able to transmit bacterial, viral, or fungal infection to a crop, which can spread quite rapidly, resulting in major losses. This is where AI comes in. With the use of computer vision through drones, we are able to identify harmful pests in crops. Once identified, the drone will proceed to spray the crop with pesticides. With the use of computer vision, farmers will also be able to get notified when a disease is spotted. Early detection of diseases reduces the chance of spread and ensures better quality control. Computer सो अब जैसे ये फर्स्ट है फील्ड मॉनिटरिंग विद कंप्यूटर विजन। सो इसके अंदर क्या होता है, जैसे बहुत बड़ा फार्म है और कोई भी जो फार्म में फसल उग रही होती है उस पर कीड़ा वगैरह लगना शुरू हो सकता है कहीं पर भी। तो अभी जैसे कोई बड़ा सा फार्म है तो फार्मर को क्या करना पड़ेगा, अपनी पूरी जो खेती हो रही है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसे जा जा के देखना होगा। एंड उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि वो पूरा ना देख पाए, कहीं से मिस हो जाए। तो इसमें कंप्यूटर विजन कैसे हेल्प करता है, एआई वो ड्रोन्स की मदद से उनको पूरे फार्म पे नज़र रखता है। वहाँ पर कोई भी कहीं पर भी उसे इंसेक्ट्स डिटेक्ट होते हैं, उसे दिख जाते हैं, तो वहाँ पर फार्मर को नोटिफाई कर देता है और ऊपर से उसमें पेस्टिसाइड्स भी स्प्रे कर सकता है। तो क्योंकि ड्रोन के अंदर अब वो स्प्रे वाली मशीन्स भी होती हैं, सो वो क्या करेगा, ड्रोन पूरे फार्म को देखेगा, स्कैन करेगा, कहीं पर भी इंसेक्ट्स दिखे तो वहाँ पर जाके वहाँ पर दवाई छिड़क देगा एंड फार्मर को नोटिफाई कर देगा कि यहाँ पर वो हो रहा है, इंसेक्ट्स उग रहे हैं और फैल रहे हैं। तो ये सब चीज़ों में एआई हेल्प कर सकता है फॉर बेटर क्वालिटी कंट्रोल। vision is also used to check on crop readiness as well as check up on livestock. Livestock can be monitored 24/7 and checked for sicknesses or diseases, which can help farmers take action immediately when spotted.
Computer vision can also be applied to the problem of soil diagnosis. Startups such as PEAT have developed an algorithm that can identify the strength and wellness of soil. The goal is to reduce the chances of growing underdeveloped crops while optimizing the potential for healthy crop production. Another application of AI in agriculture और क्या करता है इसमें कंप्यूटर विजन क्या हेल्प करता है, वो ये देखता है कि कहाँ पर कितनी ग्रोथ है, तो प्लांट्स की ग्रोथ पे नज़र रखेगा, फार्मर को नोटिफाई करता रहेगा कि कब उसकी फसल रेडी होने वाली है, कब रेडी हो गई। एंड वो ये भी ध्यान रखता है कि लाइफ स्टॉक मतलब जो फार्मर के एनिमल्स वगैरह हैं उन पे भी ध्यान रख सकता है, उनकी काउंटिंग पे ध्यान रख सकता है। तो ये सब इन चीज़ों में कंप्यूटर विजन हेल्प करता है। ऑल्सो एक सॉइल एनालिसिस होता है कि वो उसके अंदर उसकी मिट्टी को भी स्कैन करके वो देख लेगा कि उसमें सही से न्यूट्रिएंट्स है क्या, कहाँ पर दवाई की ज़रूरत है वो वहाँ पर डाल देता है। तो ये सब एआई हेल्प करता है। is predictive analytics. The current state of agriculture involves a lot of guesswork, with farmers applying water and pesticides uniformly to crops. The issue with this is there may be some plants in need of pesticides or water. Other plants will not benefit from the additional water or pesticides. This causes a massive waste in both water and pesticides. But with the help of data-driven agriculture, farmers are able to utilize precision farming, which detects and identifies crops that require water or pesticides and provide it only to the plants that are in need of it. This asubstantially method अब अगला क्या है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस। इसमें क्या करता है एआई, वो पूरे इसमें जैसे अभी नॉर्मली क्या होता है, बहुत बड़ा खेत है तो फार्मर ने क्या किया, पूरे में पानी छिड़क दिया, मतलब पूरे खेत का पानी ऑन कर दिया एंड पूरे के अंदर पेस्टिसाइड स्प्रे हो गए। तो क्या हुआ, जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर भी पेस्टिसाइड स्प्रे हुए और काफ़ी सारा वेस्ट हो गया। तो इसमें एआई कैसे हेल्प कर सकता है, उसमें भी वो ड्रोन्स वगैरह जैसे नज़र रखेंगे, तो जहाँ पर कीड़ा हो रहा है या फिर जहाँ पर कोई इंसेक्ट आ रहा है तो वहीं पर वो उसका पेस्टिसाइड छिड़केगा। जहाँ पर सॉइल में कोई कमी लगेगी तो वहीं पर जाके वो उसमें फर्टिलाइज़र्स वगैरह डालेगा। और क्या कहते हैं, जहाँ पर भी प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होगी, जहाँ की मिट्टी ड्राई लगेगी तो वो वहीं पर पानी डालेगा, और बाकी जगह पर पानी को सेव करके एक तो प्लांट भी ख़राब होने से बचेगा कि उसको ज़्यादा पानी नहीं मिला, उसको जितना चाहिए उतना ही मिला, क्योंकि अगर गीली मिट्टी ऑलरेडी है तो उसमें तो पानी डालना ख़राब होगा। सो उसमें एआई हेल्प करता है एंड वो पानी की वेस्टेज भी बचाता है। will substantially reduce cost and wastage of water and pesticides. With the use of big data, we are able to use it as actionable insights, helping farmers make decisions in order to improve sustainability, efficiency, reduce costs, and increase profitability. This consists of collecting data from soil sensors, GPS-equipped tractors, and other external sources such as local weather data. This allows farmers to drastically increase productivity while decreasing manpower. Autonomous robot. और क्या होता है इसके अंदर, जैसे जीपीएस एनेबल्ड ट्रैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो जहाँ जहाँ पर जा रहे होते हैं वो वहाँ की सॉइल वगैरह एनालाइज करते हैं एंड जीपीएस से फार्मर को मैसेज मिल जाता है कि कहाँ पर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वगैरह की कमी हो रही है, वहीं पर वहाँ फर्टिलाइजर्स डल जाते हैं। एंड जो ड्रोन्स वगैरह हैं वो भी ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। वो उन्हें रिड्यूस्ड फॉर्म में यूज़ कर लेता है कि जहाँ पर ज़रूरत हो रही है वहीं पर यूज़ हो रहा है। थर्ड आता है हमारा ऑटोनोमस रोबोट्स। One of AI's major applications in agriculture is autonomous robots. Autonomous robots help increase productivity while allowing farmers to focus on more important aspects. Harvesting and picking is one of the most popular robotic applications in agriculture due to the accuracy and speed that robots can achieve to improve the size of yields and reduce waste from crops being left in the field. With the use of autonomous robots combined with computer vision, the machine will be able to identify the ripeness of the crops and pick based on a few merits such as readiness, disease-free, and many more criteria. So there you have it. It's safe to say that एंड हमारे थर्ड ये जो ऑटोनोमस रोबोट्स हैं ये क्या करते हैं, ये मेनली हार्वेस्टिंग एंड उन सब में यूज़ होता है, जो एंड में फसल को हटाना काटना वगैरह ये सब होता है। एंड उसमें कैसे हेल्प कर रहे हैं ये रोबोट्स, ये कंप्यूटर विजन की हेल्प से ये नज़र रखते हैं कि कहाँ पर प्लांट्स उग गए, उनकी ग्रोथ फुल हो गई और कौन से हार्वेस्ट होने हैं। तो फिर ये जैसे जीपीएस एनेबल्ड ट्रैक्टर है तो वो कंप्यूटर विजन एआई ट्रैक्टर को मैसेज भेज देगा
कि इस लोकेशन पर ये वाले प्लांट्स इतना एरिया हार्वेस्ट हो सकता है, सो ऑटोमेटिकली जाके वो हार्वेस्ट कर लेंगे उसे। सो ऐसे करके एआई हमारा यूज़ हो सकता है एग्रीकल्चर में, एंड कहीं कहीं पर होता भी है। AI's applications in agriculture have come a long way and be needed to feed the world's growing population. Thanks for watching, and as always, don't forget to like, share, and subscribe. ओके, सो ये हमारा यूज़ है कि एआई एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ हो रहा है। शिविन, आप अपना कैमरा ऑन रखना। ठीक है, सो अभी हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर एआई यूज़ हो रहा है एनवायरनमेंट की कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन में। सो एनवायरनमेंट बेसिकली क्या होता है, हमारे आसपास का जो भी इकोसिस्टम है, कि फार्म मतलब प्लांट्स, एनिमल्स एंड पॉल्यूशन वगैरह भी एनवायरनमेंट में आता है, कि हवा कितनी साफ़ है, सो एयर पॉल्यूशन वगैरह। तो ये सब उनमें प्रोटेक्ट करने में एआई कैसे हेल्प कर रहा है, ये सब हमारे इंडिया में कुछ फैक्ट्स। इन केरला एआई हेल्प्स एलिफेंट्स क्रॉस रेलवे ट्रैक्स सेफली। सो ये केरला में एआई का ये यूज़ हो रहा है। जैसे अब रोड्स पे तो वो होते हैं अब ऑटोमेटिक वाले, कि ट्रेन आ रही है तो वो बंद हो जाएगा बैरियर, एंड फिर वो ट्रेन जाने का खुल जाएगा। बट एनिमल्स, एलिफेंट्स वगैरह तो कहीं से भी क्रॉस कर सकते हैं। सो मेनली इसमें कैसे हेल्प करता होगा एआई, वो ये ध्यान रखता होगा कि जहाँ जहाँ से एलिफेंट्स भी क्रॉस करते हैं उनकी जैसे कुछ स्पेसिफाइड पाथ्स बन बन जाते हैं धीरे धीरे। सो अगर वो वहाँ से क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर या तो कोई बैरियर लग जाएगा, या फिर कोई स्पीकर लग जाएगा जो कि कोई ऐसी आवाज़ चलाएगा जिससे एलिफेंट्स उससे दूर जाएं। सो ये सब ध्यान रखते हुए कुछ ना कुछ एआई हेल्प करता है एलिफेंट्स को रेलवे ट्रैक सेफली क्रॉस कराने में। इन मुंबई एआई रोबोट्स हेल्प क्लीन वाटर ड्रेन्स बिफोर इट रेन्स। सो नॉर्मली देखो, ड्रेन्स जब क्लीन नहीं होते और बारिश हो जाती है तो क्या होएगा, ड्रेन भर जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, एंड पानी सारा रोड पे भर जाएगा, वो जा नहीं पाएगा रोड से। सो इसके अंदर मुंबई में कुछ जगहों पर एआई रोबोट्स हेल्प कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, जब भी बारिश होने वाली होती है, सो इसमें क्या होता है, एआई ये वेदर रिपोर्ट पे नज़र रखता है, वेदर पे नज़र रखता है कि क्या बारिश होने वाली है। एंड जब होने वाली होती है तो वो रोबोट्स क्या करते हैं, वो उन ड्रेन्स का फ़्लो चेक कर लेते हैं, वो उनको क्लीन कर देते हैं। उसमें से जो भी ट्रैश इकट्ठा हुआ होता होगा वो ऑलरेडी वो खुद ही निकाल के उसको डिस्पोज़ कर देते होंगे। सो ऐसे एआई रोबोट्स हमारे ड्रेन्स क्लीन करने में हेल्प कर रहे हैं। इन मध्य प्रदेश एआई कैमरास प्रोटेक्ट टाइगर्स फ्रॉम बैड पीपल। तो बैड पीपल कौन होते हैं? Hunters who kill animals for their tusk and their skin. यस, यस। सो इसमें मध्य प्रदेश में जैसे कई सारे रिजर्व फॉरेस्ट्स हैं, सो वहाँ पर जो टाइगर्स होते हैं उनकी लाइफ को खतरा होता है हंटर्स वगैरह से, जो कि उनकी स्किन को एंड कुछ मेडिसिनल यूजेस वगैरह के लिए, उनके और भी चीज़ें जो भी होती हैं या फिर शो के यूज़ के लिए उनको मारते हैं। सो उसमें एआई क्या हेल्प करता है, वो ये नज़र रखता होगा कि कहीं हमारे रिजर्व्ड एरिया में कोई बाहर से ट्रेसपास तो नहीं कर गया, तो वो कैमरे नोटिस कर लेते होंगे कि यहाँ पर मूवमेंट हुई, ये एक ह्यूमन है। सो वहाँ पर अथॉरिटीज़ को नोटिफाई कर देते होंगे, अलर्ट कर देते होंगे। सो उसके अंदर मध्य प्रदेश में एआई हेल्प कर रहा है। इन पंजाब एआई हेल्प्स फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स विद लेस वाटर। तो हमने अभी अभी ये देखा लेस वाटर कैसे लग सकता है, जहाँ पर मिट्टी ऑलरेडी गीली होगी वहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं है, सो वहाँ पर पानी नहीं डलेगा, जहाँ पर सूख रही होगी मिट्टी वहाँ पर पानी डल जाएगा। सो ऐसे करके इस चीज़ों में एआई हेल्प करता है, एंड पंजाब में ये यूज़ हो रहा है। सो एक एक्टिविटी है ग्रुप ब्रेनस्टॉर्म, व्हाट लोकल प्रॉब्लम्स कुड एआई सॉल्व। सो आप दोनों, शिविन और रुद्र, आपको कोई ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो कि एआई सॉल्व कर सकता है? No, not now. नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, No. शिविन? चलो ठीक है, एक मैं बताता हूँ, जैसे एक एग्जांपल। हाँ बोलो शिविन। Yes, sir. आपको क्या, आपके आसपास कोई ऐसी प्रॉब्लम लगती है जो एआई सॉल्व कर सकता हो? So, no, sir. क्यों, एआई सॉल्व नहीं कर सकता चीज़ें? सर कर सकता है बट सर हम ह्यूमंस भी वो कर सकते हैं वो सारी चीज़ें।
अच्छा ठीक है चलो, पर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ ले लेते हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं। सो हमें मान लो एक ट्रैफिक लाइट पे 2 मिनट खड़े होना पड़ रहा है और आसपास से कोई गाड़ी नहीं जा रही। सो इन चीज़ों के अंदर एआई कैसे हेल्प कर सकता है? वो ये नज़र रख सकता है कि कहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, वहाँ पर लाइट्स वो अकॉर्डिंगली चेंज करे। एंड जहाँ पर ट्रैफिक नहीं हो रहा किसी दिन, तो वो क्या करेगा, वो उनका टाइम सिर्फ 10 सेकंड के लिए रेड लाइट करेगा, फिर ग्रीन कर देगा, ताकि लोगों को ज़्यादा रुकना ना पड़े, उससे टाइम बचेगा लोगों का। एंड इसमें एआई यूज़ हो गया। ऑल्सो जैसे ये एक एआई ट्रैश सॉर्टर है एक एग्जांपल। सो अभी क्या होता है, जैसे कूड़ा किसी ने फेंका हमने, तो फिर वहाँ जाके जो भी कूड़े वाले वो होते हैं पॉइंट्स, वहाँ पर जाके उन्हें वो किया जाता है, सेग्रीगेट। उसमें प्लास्टिक अलग, ग्लास अलग, रिसाइक्लेबल जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो अलग जाते हैं, और जो नॉन रिसाइक्लेबल होते हैं वो लैंडफिल के लिए चले जाते हैं, कि उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा, मतलब जला दिया जाएगा या फिर मिट्टी में डाल देंगे। तो जो रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स हैं उनमें एआई कैसे हेल्प कर सकता है? वो एक कन्वेयर बेल्ट पे वो कैमरेज वगैरह डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला सामान वो है रिसाइक्लेबल, सो वो उसे लेफ़्ट साइड डाल देगा, और जो नॉन रिसाइक्लेबल है उसे राइट साइड डाल देगा। तो इन चीज़ों के अंदर एआई हेल्प कर सकता है। ऑल्सो स्मार्ट एनर्जी सिस्टम्स, जैसे अब ये हैं सोलर पैनल्स हैं। सो ये क्या होते हैं, ये जहाँ पर भी धूप पड़ रही होती है तो वो चार्ज होते हैं। तो इनमें एआई क्या हेल्प कर सकता है, वो ये देख सकता है, जैसे सन रिवॉल्व करता है पूरे टाइम, और हमारे सोलर पैनल सिर्फ एक ही साइड लगे हुए हैं, तो उस पे एक टाइम पे तो बहुत अच्छे से धूप आएगी, एंड वो अच्छी खासी एनर्जी जनरेट करेगा। और उसके बाद जब सूरज थोड़ा पीछे चला जाएगा, तो वो वहीं पर ऐसी उस तरफ देखता रहेगा, उस पर थोड़ी बहुत धूप आएगी, वो ज़्यादा एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगा। तो इन चीज़ों के अंदर एआई जैसे हेल्प कर सकते हैं स्मार्ट एनर्जी सिस्टम्स में, कि वो स्मार्टली सोलर पैनल्स घूम जा रहे हैं सन की डायरेक्शन के साथ साथ, एंड उस पर लगातार धूप पड़ रही है और वो उससे ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो रही है। उससे क्या होएगा, हमारे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह भी बचेंगे, जो कि अभी जैसे बिजली बनाने के लिए मेनली हाइड्रो पावर होती है, जो कि डैम्स वगैरह में टरबाइंस होती हैं, उनसे बिजली बन रही होती है। एक विंड मिल्स होते हैं कहीं कहीं पर, गुजरात वगैरह में बहुत ज़्यादा होते हैं। सो जहाँ पर हवा चल रही होती है तो उनसे बिजली बन जाती है। एंड सोलर पैनल्स होते हैं, एंड वरना जो लास्ट होता है वो कोल की बर्निंग से बनती है हमारी बिजली। सो वो बच सकती है हमारे स्मार्ट एनर्जी सिस्टम से, जिसमें एआई हेल्प करेगा। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे, एथिकल एआई एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एथिक्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है आप दोनों में से? एथिक? नहीं? मैं एक बार आपको गूगल से भी एग्जैक्ट डेफिनेशन बता दूंगा, बट मतलब मेनली एथिक्स क्या होते हैं, एक जो गुड हैबिट्स होती हैं हमारी, जो अच्छी चीज़ें होती हैं जो करनी चाहिए, जो हमारे नेचर मतलब अच्छी हैबिट्स मेनली, जो कि हमारे नेचर को अच्छा रखती हैं, वो एथिक्स होते हैं। सो इसकी गूगल डेफिनेशन है, ethics, also known as moral philosophy, is a branch of philosophy that explores what is right and wrong in human conduct. It delves into moral principles. So हमारे जो मेनली मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो हमारी मोरल वैल्यूज़ होती हैं, उनको एथिक्स बोलते हैं। एंड जो भी राइट और रॉन्ग का हमें बताती हैं, तो उनमें राइट वाली चीज़ें हमारे एथिकल होती हैं। सो एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है? Ethical AI means building AI that is fair, treats everyone equally, safe, does not harm people, responsible, used in the right way. So हमारे AI के एथिक्स में ये सब आते हैं कि एक तो जो भी हम AI डेवलप हो रहा हो, वो एक तो फेयर होना चाहिए, वो सबको इक्वली ट्रीट करे, वो किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना करे। कि जैसे अगर हमने उसे बोल दिया कि जैसे दो मान लो बड़े रेसलर्स हैं, एक अमेरिका का एक इंडिया का, और उनकी फाइट होनी है, और हमने उससे पूछा एआई से कि बताओ इन दोनों में से कौन जीतेगा, तो भले ही मान लो प्रीवियस रिकॉर्ड्स कुछ भी हों, वो ये कह देता है कि नहीं नहीं अमेरिकन जीतेगा, क्योंकि अमेरिका बेटर है कंट्री, ऐसा कुछ कहेगा, तो ये सही नहीं होगा। तो फेयर का मतलब है सबको इक्वली, तो वो फैक्ट्स के बेस पे जो रिप्लाई होगा वो देगा, एंड किसी को भी एक साइड बायस नहीं करेगा। सेकंड होता है सेफ, डज नॉट हार्म पीपल। सो ये एआई की एक बड़ी चीज़ होती है कि एआई कभी भी ह्यूमंस को हार्म पहुंचाने वाली बात ना करे।
कि लाइक अगर कोई रोबोट में एआई है, जैसे हमारा वो डॉग है, तो उसमें एआई है। अब अगर वो जाके किसी इंसान को वो काट ले या फिर मतलब परेशान करे या मार दे, तो ये सब एआई में नहीं आता। तो ये एथिकल एआई में क्या होएगा कि वो सेफ होना चाहिए ह्यूमंस के लिए, वो किसी को भी हार्म नहीं करे। एंड रिस्पॉन्सिबल यूज इन द राइट वे, ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है एथिकल एआई में, कि हम एआई को एक रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ करें एंड सही वे से यूज़ करें, ताकि उसका कोई भी हम मिसयूज़ ना करें और हम उसको एक गुड वे में अपनी हेल्प के लिए यूज़ करें। इसकी एक वीडियो है, देख लेते हैं। Hi guys! Ready for another adventure? The rules that help us know what's right and wrong. Even AI needs to understand and follow ethics. AI is like a super helper for us. देखो, एथिक्स क्या होते हैं? द रूल्स विच हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। सो हमारे कुछ रूल्स होने चाहिए एआई के भी, जो कि गलत और सही में डिफरेंस बताएं। And follow ethics. AI is like a super helper for us. But just like we need to follow rules and make sure we're being good and fair, AI should also do the same. Welcome back, Pants Bear. I'm glad to discuss the ethical side of AI today. Professor Wisdom, where do ethics fit in when it comes to AI? That's a great question, Pants Bear. Let's imagine you're playing a game with your friend and your friend cheats. It's not fair, right? Just like that. We want AI to act fairly when dealing with us. Like when it uses our personal data, it should respect our privacy and not share our information without permission. That सो सबसे पहले क्या है, हमारा एक आता है ये एथिक्स में प्राइवेसी। सो प्राइवेसी क्या मतलब, जैसे फेयरनेस। सो हम ये चाहते हैं कि हम जब भी कोई दोस्त के साथ गेम खेल रहे हो, तो वो कोई चीटिंग ना करे। अगर वो जैसे हम चेस खेल रहे हैं और वो कोई गोटी ऐसे छुपा दे कोई चेस की, तो फिर हम वो चीटिंग हो जाएगी। तो ऐसे ही एआई को भी हमारे साथ फेयर रहना चाहिए और हमारी प्राइवेसी की रक्षा करनी चाहिए। जैसे हम उसे कोई फ़ोटो देते हैं, अभी एक टाइम पे वो घिबली ट्रेंड बहुत चला था, एआई को सबने अपनी अपनी सेल्फीज फोटोज दिए, तो उसमें वो उसे कार्टूनिफाई करके दे दे रहा था वापस। पर अब अगर वो हमारे पर्सनल डेटा का यूज़ करे, मिसयूज़ करे, वो कहीं इधर उधर उसे ट्रांसफ़र कर रहा है एंड ये सब कर रहा है, तो ये एथिकल नहीं होएगा। सो एआई के प्राइवेसी में ये आता है, एथिक्स में ये आता है कि वो हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखे। makes sense. Are Share our information without permission. That makes sense. Are there other ethical things that AI should do? Yes, Pants Bear! Another important point is bias. Just as it's not fair if a teacher always picks the same student to answer, it's not fair if AI makes decisions favoring certain groups of people over others. So AI सो जैसे अगर कोई टीचर है और वो अपने स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक को ही आंसर करवा रहा है, मतलब उसने कोई क्वेश्चन पूछा, 6 बच्चों ने हाथ उठाया, उसने एक को आंसर देने के लिए बोल दिया। अगली बार पूछा, 8 लोगों ने हैंड्स रेज किए, उसने फिर से उसी बच्चे को बोल दिया। फिर दोबारा पूछा, दोबारा उसी बच्चे को बोल दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये टीचर उस बच्चे के प्रति बायस्ड है एंड वो बार बार उसे ही चांस दे रहा है। सो इसमें ऐसे ही ये सही नहीं होएगा, ये एथिकल नहीं है। इसी तरीके से एआई को भी बायस नहीं होना चाहिए, लाइक किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को वो फेवर नहीं कर सकता, उसके लिए सब इक्वल हैं। अगर वो किसी को भी फेवर दिखा रहा है अपना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो बायस हो रहा है उनकी तरफ, वो उनके लिए पॉजिटिव वे में हमें जो भी है रिप्लाई दे रहा है। सो ऐसा नहीं है, सबको इक्वल ट्रीट करके किसी के लिए नेगेटिव भी नहीं बोलना, बट सबको नॉर्मली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर साइड वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, ना कि बायस होके। ये एक एथिक होता है। should avoid bias for fairness. Right. Fairness is important.
What about AI understanding us? Absolutely. That leads us to transparency. This is like when you play a board game and all rules are explained before. His helps you understand the game better. Similarly, AI should be able to explain how it works and makes decision, which helps us trust and understand AI better. सो हाँ, तीसरा पॉइंट क्या है? ट्रांसपेरेंसी। इसके अंदर क्या आता है कि जैसे कोई भी अगर कोई गेम है तो उसके सारे रूल्स क्लियरली लिखे होने चाहिए। इसी टाइप से जब भी एआई को हम कुछ दें और वो कुछ उसमें क्रिएट करे या कुछ भी हम एआई को बताएं वो उसको कुछ भी प्रोसेस करे तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसका दिखना चाहिए कि उसने इसके साथ क्या किया। मतलब लाइक हमने अगर उसे आपको कुछ बोलना No. ओके, सो हमने अगर कुछ भी उससे पूछा, उससे कोड मांगा तो वो उसका क्लियरली ट्रांसपेरेंटली उसका रिप्लाई दे एंड वो कुछ भी छुपाए ना हमसे। तो ये एक आता है, ये 3 हमारे एआई के मेन एथिक्स हैं: प्राइवेसी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। हमारा डेटा इधर उधर ना करे, वो उससे उसका ध्यान रखे। फेयरनेस मतलब वो किसी भी ग्रुप के प्रति बायस्ड ना हो, उसको प्रेफर ना करे, सबको इक्वल ट्रीट करे। एंड ट्रांसपेरेंसी कुछ भी छुपाने का ना हो, वो सब कुछ सामने सामने और ट्रांसपेरेंटली करे। So, privacy, fairness, and transparency? We got it! But why is it important for us to know about it, Professor Wisdom? It's important, Pants-Bear, because we are part of AI's future. Knowing about these ethical aspects helps us decide how we want AI to be part of our lives. Just as we respect others and carry ourselves responsibly, we should make sure AI technology is used responsibly and ethically as well. That's super important! Thanks, Professor Wisdom. Every learning journey we learn here at MetaBears campus has been memorable and filled with fun facts. सो एआई के हमें, क्योंकि हम एआई को बहुत फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं एंड एआई काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है, सो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एआई यूज़ होने वाला है। सो ये एथिक्स जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता रहे कि एआई के क्या क्या एथिक्स हैं और उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो वॉयलेट होते हैं तो वो रूल्स के अंदर नहीं आते, सो इसीलिए वो एक तरीके से कंप्लेन करने के लिए वो हो जाते हैं। तो अगर एआई अपने एथिक्स का ध्यान रख रहा है तो हमें भी पता रहना चाहिए कि क्या क्या उसके एथिक्स हैं, वो हमारी प्राइवेसी को इन्वेड नहीं कर सकता। ठीक है। Remember, friends, we should use AI and all technology ethically and responsibly while continuing to stay curious and explore. See you in the next adventure. Bye! ओके, सो ये 3 एथिक्स हैं हमारे मेन। अब इसके अंदर एक ये एक्टिविटी टाइप का कुछ है, किड्स क्रिएट अ कॉमिक स्ट्रिप और शॉर्ट स्किट। तो ये तो मेनली हमारा लाइक ऑफलाइन बैच के लिए था, बट इसके अंदर हम जैसे ये एक एग्जांपल ले सकते हैं अभी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, जैसे आपने रुद्र ने बोला कि मेरा नाम रुद्र है और पीछे से आपके पीछे छुपा हुआ है शिविन, उसने ऐसे बोल दिया माइक पे मेरा नाम शिविन है। सो आपने लिप्स तो हिला दिए और आपकी आवाज़ क्या आ गई, मेरा नाम शिविन है। सो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगा, ऐसी चीज़ें अब एआई भी कर सकता है। जैसे हमने किसी का फेस ले लिया और किसी और की आवाज़ डाल दी। सो ये सब चीज़ें एथिकल नहीं होती एंड इसके अंदर हमें एआई के एथिक्स पता लगेंगे कि हमें क्या क्या उसका मिसयूज़ नहीं करना होता एंड उसे ध्यान से यूज़ करना होता है। तो एक बार हम अपनी पूरी क्लास का रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, फिर ओवर होएगी आपका कोर्स, क्योंकि अब फाइनल आ गया। सो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा था। एक बार आप रुद्र बताओ डेफिनेशन एक बार एआई की क्या है। If a computer or a robot starts to think, it is called artificial intelligence. And we humans and robots both have in their own intelligence. Human हम्म intelligence and artificial intelligence. ओके, शिविन आप बताओ। AI is a generator through a computer which
generates some information about the real life, or make photos or copies the things. ओके, एआई ये सब तो कर सकता है, पर ये आ जाता है क्रिएटिव एआई के अंदर। सो बेसिकली एआई की डेफिनेशन में क्या बोलेंगे हम कि व्हेन कंप्यूटर और रोबोट्स कैन थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमंस एंड दे आर यूज्ड टू हेल्प अस स्मार्टली, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जब भी कोई कंप्यूटर या रोबोट कुछ भी स्मार्टली कर रहा है, खुद खुद से सोच के कर पा रहा है, सो वो एआई में आ जाता है। इसका लाइक सबसे पुराना एग्जांपल क्या था कि लाइक सबसे पहले जब कंप्यूटर में चेस आया था, सो उसके अंदर वर्सेस कंप्यूटर का ऑप्शन होता था। सो दैट्स अ बेसिक एग्जांपल ऑफ लाइक बेसिक एआई। उसके अंदर क्या होता था, जो भी यूज़र मूव चल रहा है उसके बेस पे कंप्यूटर प्रोसेस करके उसको रिप्लाई मूव दे रहा है। सो ये चीज़ में क्या हो जाता है, इसमें एआई यूज़ हो रहा है एंड दिस इज एन एग्जांपल। सो जब भी कंप्यूटर खुद से कुछ कर रहा है, लाइक हम उसे कमांड दे रहे हैं तो वो कर रहा है, वो तो अलग चीज़ हो गई। बट अगर वो ऑटोमेटिकली हमने उसे थोड़ा सा बता दिया एंड फिर वो खुद कुछ क्रिएटिवली कर रहा है, वो एआई है। नेक्स्ट हमारा आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज़ अ वे टू हेल्प कंप्यूटर्स लर्न फ्रॉम एग्जाम्पल्स। हम उसे एग्जाम्पल्स देते हैं, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स देते हैं, जितना ज़्यादा डेटा देते हैं, वो उतने अच्छे से सीखता है और उनसे सीखता है अच्छे अच्छे से। एंड जैसे अगर वो गलतियाँ भी करता है तो उसे और एग्जाम्पल्स देके हम उससे सुधार सकते हैं। इमेज रिकग्निशन भी मशीन लर्निंग का एक डीप पार्ट है कि लाइक जब भी वो इमेज को प्रोसेस करके उसमें कंप्यूटर विजन लगा के, लाइक उसे देख कर उसको प्रोसेस करता है और उससे कुछ सीखता है, मशीन लर्निंग करता है, तो वो इमेज रिकग्निशन में आता है। जस्ट लाइक हमारे फ़ोन में फेस अनलॉक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में कैमराज एट्सेट्रा। ठीक है, फिर हमने क्रिएटिव एआई में देख लिया था कि कैसे एआई सॉन्ग बना सकता है, म्यूज़िक पूरा बना देता है, लिरिक्स बना देता है, कार्टून वीडियोस बना देता है। मैंने ग्रुप पे भेज दी थी, देखो 2 कार्टून वीडियोस भेजी थी मैंने एआई की बनी हुई, आप वो देख सकते हो कि हमने जो कल बनाई थी और हमने एक बार I've पहले भी seen बनाई that. थी। सो वो भी एआई से पूरा, उसके अंदर कुछ भी काम हमने नहीं किया, हमने सारा एआई से करवाया टोटली। बस एडिटिंग मतलब उसे जोड़ना और वगैरह वो तो मैंने कर दिया, वरना वो भी अब एआई वगैरह कर लेता है। लेकिन उनके लिए हाँ कुछ प्रीमियम सॉफ्टवेयर लगते हैं, प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस लगते हैं, क्योंकि एआई भी एक्सपेंसिव है। फिर हमारा आता है एआई एंड द एनवायरनमेंट। हमने आज ही पढ़ा कि कैसे हमारे एग्रीकल्चर में एआई यूज़ हो रहा है, कैसे वो फार्मर्स की हेल्प कर सकता है ड्रोन्स की हेल्प से, एंड कैसे वो पानी बचा सकता है, पेस्टिसाइड्स बचा सकता है, फार्मर्स का मनी बचा सकता है, एंड नेचुरल रिसोर्सेज का भी सेव करता है, एंड एनर्जी को भी स्मार्टली वो क्रिएट कर सकता है, जनरेट कर सकता है। सो इन सब में एआई एंड एनवायरनमेंट में यूज़ हो रहा है वो। एंड नेक्स्ट हमने अभी लास्ट पढ़ा कि एथिक्स क्या होते हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है। सो सबको फेयरली ट्रीट करना एंड सबके लिए सेफ होना, कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना, एंड प्राइवेसी को सिक्योर रखना, ये एआई के काम है। एंड हमारा काम ये है कि हम उसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें ताकि किसी और का मिसयूज़ ना होए, एआई का मिसयूज़ ना होए, और किसी की प्राइवेसी हार्म ना होए, या फिर किसी की जॉब को खतरा ना होए। ये वाली चीज़ भी हमने शुरुआत में पढ़ी थी कि एआई अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट आ सकती है। सो इसीलिए हमें एआई को एज अ हेल्पर यूज़ करना है। ठीक है, ये हो गई हमारी एआई क्लास। तो आपने सीख लिया एआई के बारे में अच्छे से, आपको कुछ नया जानने को मिला एआई का। Yes, Yes. sir. Sir, ओके, some tools and extra. हाँ टूल्स, आपको कुछ टूल्स मैं अभी चैट में लिखूं या फिर आपने How लिख लिए can थे? it help us? How does it learn? And some tools by which we can create some हम्म, music, pictures, and other things. ओके। एंड बेसिकली आपको अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि अगर हम कोई गूगल पे सर्च कर रहे हैं या फिर चैट जीपीटी पे सर्च कर रहे हैं तो इसमें एआई कौन सा है? ठीक है, पता है ना, चैट जीपीटी इज एन एआई सॉफ्टवेयर। वो क्या करता है, वो हमें रिप्लाई करता है। एंड गूगल क्या करता है, गूगल हमें बेसिकली जो भी वेब पे डेटा डाला हुआ है, हमने जो भी टाइप किया
वो वर्ड्स जहाँ पर भी यूज़ हो रहे हैं वो लिस्ट कर देगा। वो उसमें कुछ भी हमें रिप्लाई नहीं करेगा कि हमने क्या पूछा है, वो उसका मीनिंग नहीं देखेगा। बट हाँ, अब गूगल में जैसे AI ओवरव्यू लिखा आता है, वो AI है, क्योंकि उसके अंदर वो मशीन सोच रही है हमारे क्वेश्चन के बारे में एंड उस पर रिप्लाई कर रही है। सो AI बेसिकली वो है जहाँ पर भी कंप्यूटर खुद से कुछ सोच रहा है। ठीक है, एंड आपने टूल्स देख लिए कौन कौन से कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, और कोई क्वेश्चंस एंड डाउट्स हैं कुछ भी आपको AI के बारे में कोई क्वेश्चन आ रहा हो पूछ सकते हो अभी।